أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اور حضرت عثمان کا دور کب آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ بولیے دو خلفاء کے بعد نا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 15 سال بعد قرآن مجید جمع ہوا ہے۔ بولیے بولیے بولیے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 2 سال خلافت رہی حضرت ابو بکر کی، اور 12 سال خلافت رہی کس کی؟ 12 سال کی 13 سال نہیں 12 سال لگ بھگ، ہم 15 ہے نا، تو 12 اور 2 14 سال ہو گئے، 15 سال پھر وہ آ گئے، تو گویا کہ 15 سال بعد اس کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ ایک تاریخ، بعض روایات اس کی جانب ہیں، لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بولیے، قرآن مجید نے کیا کہا؟ ان علینا جمع و قرآن۔ دوسری بات یہ ہے، عبس وتولى ان جاءه العامى وما يدرك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وما من جاءك يسعى ويخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة۔ اس کے بعد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ یہ سفرہ سے مراد کون ہے؟ کرام بررہ، سفرہ لکھنے والے۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے مفسرین نے فرشتوں کے لیا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ لیکن بہت سے مفسرین، امام جو ہے، امام ہمارے بہت سے زبردست امام کون سے؟ امام ارے بھائی امام تیمیہ کے بعد بھائی، ارے بھائی اب دیکھیے ارے تفسیر کبیر والے بھائی، نہیں تفسیر کبیر امام راضی، دیکھیے کبھی ہو جاتا ہے ایسا، امام راضی تفسیر کبیر، ابن کثیر نہیں، ابن کثیر سے پہلے ہے امام راضی۔ امام راضی نے جو لکھا ہے زبردست لکھا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون؟ صحابہ کرام ہیں، اور ہماری جو تفسیر روایات ہے صحابہ کرام ہیں۔ بعیدی صفت وہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ان کے کرام بررہ، کرام ہے نا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، صحابہ کی صفت آپ پڑھ چکے نا، کرام بررہ ان کے۔ اچھا یہ تو دیکھیے یہ ان کے ہاتھوں میں ہے، کتاب ان کے ہاتھوں میں، تو گویا کیا ہے؟ حضرت عثمان نے لکھا ہے کیا اس کو؟ لکھنے والی اکیڈمی پوری موجود ہے، مکے میں بھی تھی یہ اکیڈمی۔ مکے میں جو صحیح روایات ہیں 20 تھے کاتب، 20 کاتبین تھے مکے میں۔ مکے میں بھی لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے کہ سب وہ تھے بھائی؟ بولیے، سب امی مانے ان پڑھ سب تھے کیا؟ ہاں سب ان پڑھ تھے؟ نہیں، پڑھے لکھے لوگ وہاں بھی تھے۔ ابو بکر پڑھے لکھے تھے کہ نہیں؟ بولیے پڑھے لکھے تھے؟ ابو بکر پڑھے لکھے تھے، عمر فاروق پڑھے لکھے تھے، عثمان غنی پڑھے لکھے تھے، حضرت علی پڑھے لکھے تھے، سب پڑھے لکھے ہیں لوگ۔ ہاں آپ سوچ لیجئے جہاں سالانہ دنگل، ادبی دنگل ہو رہا ہو، ادبی دنگل، ادبی مار کے زبان کے، وہ قوم جو ہے بالکل وہ ہوگی پڑھی لکھی نہیں تھی اس پہلو سے، ہے نا؟ تو گویا کیا تھے وہ؟ اس میں اچھی خاصی ٹیم ہے، اور لکھتے تھے، صحابہ کرام لکھتے تھے، جیسا کہ نون والقلم ہے، نون والقلم، شاہد کون؟ قلم، قلم شاہد ہے۔ وما یسترون، وہ شاید جس کو یہ لکھ رہے ہیں، کون لکھ رہا ہے؟ آپ سوچئے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جو قلم کی اتنی عظمت دے رہا ہو، کس لیے؟ بعد میں لکھنے کے لیے کیا؟ بھائی وہی الہی جو قرآن مجید کا نزول اس وقت ہو رہا ہے جبکہ اس کا بندوبست پورا ہو چکا ہے، کس کا؟ قلم کا، دوات کا، بولیے ہر ایک کا، البتہ کاغذ نہیں، کاغذ بہت بات کی چیز ہے۔ کس چیز پر لکھتے تھے وہ؟ چمڑے پر لکھتے تھے، جس کو فی رقم
वत्तूर व किताब मस्तूर फिर रक़्म मंशूर। ये रख होता था, वो चमड़े की बारीक झिल्ली बनाते थे, उस पर लिखते थे। समझ में आई बात कि नहीं आप लोगों को? ऊँट की हड्डियों पर भी लिखते थे, लेकिन ये अहम तरीन जुज़ था लिखने का कुरान मजीद। हाँ, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन वो तो सही नहीं है कि ज़ा व पत्ती पर लिख के बकरी आकर खा गई। ये तो सही नहीं मान सकते हैं ना। इस तरह की रवायत मिल जाएंगी आपको जी, लेकिन ये तो सही नहीं है कि बकरी आकर खा गई हो। अल्लाह के कलाम की तकफीर है। हाँ, ये बात है। तो नून वल कलम मा यस्तरून, शायद है ये कलम और शायद है वो जिसको वो लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? साहबे कराम लिख रहे थे इसको। और आपको मालूम है कि ये एक एकेडमी वहाँ थी मदीने में, उस एकेडमी के सदर थे ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया थे, ये यहाँ भी लिखते थे। आपको मालूम है जब हज़रत उमर गए हैं किसके पास? अपने बहन बहनोई के पास, तो क्या था? कुछ पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद क्या था? उन्होंने जल्दी से आखिर कुछ रही होगी कोई चीज़, जब ने छुपा दिया। लिखी हुई थी कि नहीं? बोलिए आप। अगर लिखा हुआ नहीं तो कैसे छुपाते हो? बहरकल मुख्तसर, ये मुख्तसर मैं बता रहा हूँ आपको, कुरान शवाहिद हैं किस चीज़ के? अहदे नबूवत में उसकी किताबत हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबत करवाते जाते थे, सीनों भी महफूज होता जा रहा था और किताबत भी बड़े एहतमाम के साथ। अरे नबी सल्लल्लाहु, आप सोच लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर किताबत पर, कलम दवात किताबत लिखने पढ़ने में कितनी तवज्जो दी है कि जब असीरान बदर पहुँचे हैं जी, कहा कि और ज़र फिदिया किसी के पास नहीं तो वो क्या करे? अंसार के बच्चों को तालीम दे। यही ना बात है। वो नबी जो तालीम, जो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, दुनिया मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, जो तालीम पहले वही में तालीम है। नमाज रोज़ा हज ज़कात से ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है? तालीम और कलम की है। और वो कुरान मजीद को नहीं लिखवाएगा। और वो हज़रत उस्मान के ज़माने में मुख्तसर ये कि हर अहद में इसकी किताबत हुई है। अहद नबूवी में हुई है, अहद सिद्दीक़ी में हुई है, उमर फ़ारूक के अहद में हुई है, हज़रत उस्मान के अहद में। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो कारनामा है वो ये है, जो लोग घर में जामिउल कुरान है ना, जामिउल कुरान का मतलब क्या है? उम्मत के एक कुरान पर उन्होंने जमा किया है। पूरी उम्मत को किराएतें मुख्तलिफ हो रहे थे, आपको मालूम है। तो उन्होंने क्या कहा, क्या किया? हफ्सा का, जो हफ्सा के पास कुरान था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत जी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने असल जमा करवाया था जो इधर उधर लिखा, ठीक है ना, जमा करके किसके? हफ्सा के पास वो, और फिर उसी की तिलावत कर रहे थे ना। हाँ, तो वो एक ही नुस्खा जो उन्होंने किया है, सारे नुस्खों को मिलाकर क्या किया? एक नुस्खा, सबको जमा करने के बाद एक नुस्खा बनाया। सरकारी नुस्खा क्या हो गया? एक हो गया जो तमाम बिलाद इस्लामिया पनाह फैला दिया गया, तमाम बिलाद के। अब सरकारी नुस्खा एक रहेगा, जो आखिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तिलावत करते थे। तो गोया कि क्या किया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने? पूरी उम्मत को एक नुस्खे पर जमा किया है। समझ गए? जामिउल कुरान या जाम उम्मत मुस्लिम अलल कुरान अल वाहिद, पूरी उम्मत को जमा कर दिया किस पर? एक नुस्खे को जमा किया। क्योंकि क़िराअतें मुख्तलिफ हो रही थी, इख्तलाफात लहजात थे, आपको मालूम है, लहजात अलग अलग थे, इस वजह से इख्तलाफ पैदा हो रहा था। उनकी क़िराअत कुछ हो रही थी, उनकी क़िराअत कुछ हुई, और हर रोज़ शिकायत पहुँच रही थी वहाँ खिलाफत में। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में तो उन्होंने कहा नहीं, तब ये हुक्म हुआ है। ये मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब बात है कुरान मजीद की हिफाज़त और सीरत का अहम तरीन मौजू इस पहलू से कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहद मुबारक में इसको जमा किया गया, आहद फ़ारूक़ी में जमा किया गया, आहद जो है और आहद सिद्दीक़ी, आहद फ़ारूक़ी और आहद उस्मान रज़ी अल्लाह, सबके ज़माने में। और आज शाफ़ात के ज़माने में भी जमा हो रहा है, लिखा रहे हैं, किताबें हो रही है मोदी, हर ज़माने में आज भी किताबत हो रही है, और क़यामत तक होती चली जाएगी कि नहीं? ये जो किताबत जो सिलसिला शुरू हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा हर अहद में इस किताबत होती चली जा रही है। तो ये बात, हाँ चलिए। क्या किताबत में हिज्जे भी लिखवाए जाते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए? हिज्जे का मतलब ये है कि जो ज़बर ज़ेर इराब जो आप देखें वो नहीं है। हाँ हाँ, अल्फाज के हिज्जे
जैसे पुस्तता एक जगह सीन से एक जगह स्वाद से। देखिए वो जो सीन से और सात से है ना, ऐसा हुआ कि सीन और सात दोनों का माना एक है। देखिए असल में जैसे मुसैतिर देखते हैं आप ना, मुसैतिर देखते हैं ना, मुसैतिर है जैसे सिरात है, तो बात जो है यहाँ सिरात के भी माने वही रास्ते के हैं और सिरात के माने वही रास्ते के हैं, मुसैतिर के माने में भी रास्ते के हैं और मुसैतिर के माने भी वही दारवा के हैं। अब अभी ये जो है जो सूरत पढ़ी गई है उसमें वम्मद साइल फला अम्मल यतीम फला तकहर, एक तकहर की है, तकहर है आप पढ़ते हैं ना, और एक किरत क्या है तकहर की है, वो माने भी गोया वही है। तो ये जो आप मुख्तलिफ देखते हैं ना ये, तो वो उसकी तावीलात हैं, समझ गए आप ना, उसकी तावीलात हैं। इसी तरह जो लहजात जो पढ़ने में जो समझ, जैसे मिसाल में नसारा, नसारा है नसारे, बात करें तो नसारे, सुकारा, सुकारे, सुकारी, इस तरह के वो लहजात हैं। लेकिन सारे लहजात ख़त्म कर जो हफ्स की क़िरत आप कहते हैं ना, हफ्स की क़िरत जैसे सारी दुनिया में वही चल रहा है क्या, तो ये थोड़ा फ़र्क आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत। इस तरह तो फ़रूक जो है ना, ये लहजात का फ़र्क, लहजा का तो ये तो हर एक का फ़र्क होता है। ये तो आपके दक्कन की उर्दू अलग है, बोलिए। हाँ हाँ आप सोचिए, हाँ है ना, मैं वहाँ जो वो उसमें जो है तवा को अल्लाह हुआ छपर कहते हैं, वो कौन लोग हैं हुआ छपर वाले? कोयती है, ईरानी, ईरान है ना, अल्लाह अकबर वो बोलते हैं, लेकिन वो तो है नहीं। लेकिन वो, और या आप कहिए भाई, आप जो आपके हैदराबाद के लोग काफ को खा बोलते हैं ना, है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो खुद एक ज़ुबान में फ़र्क होता है, एक ज़ुबान उसकी, मौदूदी साहब की ज़ुबान अलग है जी, मोना माजिद दरियाबादी की ज़ुबान अलग है, शिबली की ज़ुबान अलग है, सब उर्दू के हैं ना, लेकिन आप पढ़कर समझ जाएंगे, अरे रे ये शिबली की ज़ुबान है, ये मौदूदी की ज़ुबान है, बोले एक ही ज़ुबान के सब हैं। तो फ़र्क होता है लहजात में, और ये भी अल्लाह की कुदरत है। वख्तिलाफ़ अलसिनतकुम व अलवानिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लायात, इसमें निशानियाँ हैं किस चीज़ की? अल्लाह की कुदरत की, उसकी हिकमत की, उसकी जो है समझिए कि गैर मामूली कुदरत की, कुदरत वासिया की। अगर ये मुख्तलिफ चीज़ें न होती तो गोया कदीर नहीं था, वो तनव्वु है, तनव्वु। तो ये सब ज़ुबान के मसले में भी है। मैं आता हूँ इस पर, देखिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो है सूरतें, ये जो छोटी छोटी सूरतें हैं, यही बढ़ती तो क्या बन जाती हैं बड़ी बड़ी सूरतें। जैसे ज़ुहा को फैलाएं तो क्या बन सकता है? सूरह यूसुफ बन सकती है, सूरह क़सस। सूरह क़सस पर उस दिन हमने गुफ्तगू की थी, हालांकि वो एक दूसरे मौजू की थी। इस मौजू से भी आप देखेंगे तो एक ख़ास मुनासिबत थी सूरह क़सस की, लेकिन उस पर हमने थोड़ी गुफ्तगू कर लेते। आज सूरह यूसुफ को देखिए। सूरह यूसुफ है, सूरह यूसुफ में आप देखिए कहाँ शुरू करता है कुरान मजीद, अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरान अरबिय्या लअल्लकुम नहनु नक़ुस्सु अलैका हसनल क़सस बिमा औहैना इलैक व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िल। बेशक तू क्या था? गाफिल था, मतलब तू जानता नहीं था, तू जानता नहीं था, जिस नावाकिफ था। जैसे इन्होंने क्या वजदका दाल्लन किया है ना, वो शान रसालत में गुस्ताखी है, वो शान रसालत में गुस्ताखी है, वो शान रसालत में गुस्ताखिया कही कि वो उनका जहन नहीं गया, वो जहन नहीं गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह नहीं कर सकते, बल्कि जो नावाकिफ रहा, जुयाए हक थे जी, जुयाए हक थे। ज़्यादा मुतहय्यर जो हमने वो तफसीर जो अरबी में देखी है ना, जो बहुत से माने जो दिए हैं, हक के मुतलाशी, जुयाए हक उससे बोलते हैं, जुयाए हक थे। वह इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन था। हमने क्या किया तुझको, तू तो जानता भी नहीं था कि तुझको नबी बनाने वाला है अल्लाह ताला, तुझको नबी बनाने वाला तुझको नहीं मालूम। सूरह शूरा में है वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान वलाकिन जअलना नूरन नहदी बिही मन नशा मिन इबादिना
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تجھ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کی کس چیز کا نام، تجھ کو کچھ معلوم نہیں تھا، تجھے کوئی خواہش نہیں تھی، کوئی تمنا نہیں تھی کہ ہم کو نبی بنایا جائے، کچھ نہیں، یہ تو ہم نے بنایا ہے، ہم نے تجھے نبی بنایا، ہم نے تجھے رسول بنایا ہے بھائی، تو ہم ہی تیرے کیا ہوں گے؟ ہم نے بنایا تو ہم ذمہ دار ہم ہیں۔ من الناس واللہ یعصمک من الناس، ہم ہیں، ہم تمہارے محافظ ہیں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ما ودعک ربک وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ مِنَ الْغَافِلِينَ، تو غافل تھا، تجھ کو پتہ نہیں تھا کہ دین کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کرم ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے نا، دیکھیے بشارت کیسے بشارت، اب پوری وہ کشمکش جو مکے میں برپا ہے، سورہ مکی ہے نا، پوری کشمکش سورہ یوسف میں نظر آتی ہے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت ہے، دوسری جانب انہیں خاندان کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، جی سب کیا ہیں؟ شدید مخالفت کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے۔ مخالفت کی اصل بنیاد توحید تو ہے، اور رسالت۔ اچھا اور ذرا صاحب ایک دوست، جی ٹھیک ہے وہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ کیا توحید کے جو دلائل ہیں ایسے ہیں کہ ان کے سمجھ میں نہیں آتے تھے؟ یہ آخرت کی بات جو وہ قرآن مجید بیان کر وہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ ایسی بات ہے کیا؟ توحید کے دلائل واضح تھے کہ نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم واضح تھی، مگر پھر بھی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ جی ہاں یہ بات ہے، یعنی بغض، نفرت، حسد، اس کو کیا کہیں آپ؟ حسد، جس کے جو سورہ نمل میں بیان کیا ہے، سورہ نمل میں ہے اور دوسری جگہوں پہ، یہ تو صرف حسد ہے۔ حسد کیسے ہے؟ آپ کو یاد ہوگا مکی صورتوں میں یہ چاہتی ہے کیسا ہے بھائی یہ رسول، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، انہوں نے معیار کیا بنایا تھا؟ دنیا کو بنایا تھا، معیار دنیا کو بنایا تھا نا، یہ کیسا رسول، اس کے پاس یہ نہیں وہ نہیں، جیسا کہ سورہ فرقان میں بتایا تھا ہم نے۔ اور کیا اگر اللہ کو رسول بنانا تو یہی حضرت ملے ہیں؟ ہاں جی، طائف اور مکے میں بڑے سردار نہیں تھے؟ بولیے بڑے سردار نہیں تھے؟ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی سرداری تسلیم کر لیں ہم تو کیا ہوگا؟ بس یہ بات ہے، یہ ہے بغض، نفرت، عداوت، حسد، یہی تو ہوا حسد، یہ حسد ہوا۔ اب اس کو دیکھیے، ایک خاص قصہ اور ایک دلچسپ قصہ، بے نظیر قصہ، بولیے جس کو قوم احسن قصص کہتا ہے نا، بہترین قصہ ہے۔ سب قصے بہترین، اس میں دو رائے نہیں ہیں، کوئی قصہ جو ہے سمجھے کہ نظر انداز کرنے کے لائق نہیں قرآن مجید کا نا، اور ہر قصہ بہترین ہے، لیکن اس کو بہرحال کچھ نہ کچھ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے جس کو احسن قصص کہا گیا۔ کیسے کیا کہتا ہے؟ اب یہ نہیں کہا ان کی حالت ایسے، یہ نہیں کہا کچھ بھی نہیں، قصہ شروع کر دیا تاکہ خود غور کریں کہ دیکھو یوسف چند بھائی تھے، جی کیا کیا انہوں نے؟ دیکھا کہ کیوں باپ محبوب رکھتا ہے یوسف کو، کیا سرخاب کے پر ہیں، جبکہ ہم کیا ہیں؟ جی عصبہ، طاقت رکھتے ہیں، تمنا ہے، باپ کی اس کی خدمت کرنے سب ہم ہی ہیں، اور یہ جو ہے یہ بھائی، یہ چھوٹا اور اس کا بھائی جو ہے اس کو محبوب بناتے ہیں، کیا بات ہے؟ گویا کہ کیا ہے وہ کیوں محبوب بنا لیا؟ بولے یہی نہیں ہوا، ہم موجود، ہمارے موجودگی میں اس کو کیوں نبی بنایا جا رہا ہے، یہی بات ہوئی نا۔ اچھا پھر اب دیکھیں چالیں چل رہے ہیں یوسف کے خلاف، ٹھیک اسی طرح چالیں چل رہے ہیں جس طرح سے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا چالیں چل رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ نے اس کو جو ہے باندھ رکھا ہے؟ جی پہلے کا اقتلو ہے نا، پہلے قتل کر دو، یاد ہوگا آپ لوگ، قتل کر دو، یا دور پھینک دو اس کو، ہے نا، دور پھینک دو، یہی کہا ہے نا۔ تو ایک آدمی نے کیا کہا؟ تجویز کیا ہے؟ نہیں قتل نہیں، بلکہ اس کیا کرو، کہیں اس کو کنویں میں ڈال دو۔ مختصر ایک کنویں میں ڈال دیا کہ نہیں؟ کنویں میں ڈال دیا نا۔ اب کیا ہوا؟ کنویں میں ڈالنے کے بعد ختم ہو گیا مسئلہ، حل ہو گیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں گئے، پھر اس کے بعد قافلہ آیا، نکالا۔ وہ قافلہ کس کا تھا؟ عربوں کا تھا قافلہ، وہ تجارت نا، وہ قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے مصر کی طرف۔ وہ دیکھا، انہوں نے نکال کر لے جا کر، یہ عرب تھے جنہوں نے بیچا،
यूसुफ को बेचा कौन? अरब हैं। कहाँ बेचा? मिस्र के बाजार में। अब ये एक जो है मैं एक ज़िमनन बात देखिए आ गई। अरबों को ने बेचा हज़रत यूसुफ को। हज़रत यूसुफ किसके बेटे? याकूब के, यानी बनी इसराइल के सबसे पहले। बोलिए, गुले सरसबद है बनी इसराइल के। और बनी इसराइल के लोग यहूदी उलमा इल्ज़ाम लगाते हैं कि हज़रत इस्माइल की माँ जो है क्या बांदी है, ये सब ग़ुलाम के औलाद हैं। बनु इस्माइल को क्या कहते हैं? सब ग़ुलाम के औलाद हैं। हालांकि देखें तो क्या है, बिके हैं कौन? जी, सारा की औलाद जो बिकी है, अब बार बार बिकी है तारीख़ में, बार बार ग़ुलाम हुए हैं। या तारीख़ आप समझ लीजिए, ये पूरी तारीख़ बताती है। आप खुद आप लोग पढ़ें, बार बार ये कौम ग़ुलाम हुई है यहूदियों की, जो सारा के औलाद है। हज़रत याकूब की ये औलाद, इसहाक के औलाद हमेशा ग़ुलाम। और ये औलाद बनु इस्माइल की क्या है, तारीख़ क्या बताती? कभी ग़ुलाम नहीं हुआ। आप समझ लीजिए, ये आज़ाद रहे हैं। ये कुछ तो हुक्मरान आ जाते हैं, मगर शयूख यही रहते हैं। कोई बाहर से आकर नहीं हो सकता इन पर, समझ लीजिए। उखाड़ फेंकेंगे। इनकी फितरत में नहीं है तो ग़ुलामी की किसी बर्दाश्त कर लें। मुस्तफ़ा साहब समझ रहे आज तो ग़ुलाम है नहीं। ये ग़ुलामी इनको जो है ना, वो ग़ुलामी बाहर एक ख़ास माने में, लेकिन वो आ नहीं सकते यहाँ। वो आ नहीं सकते कि आकर इनको ना ये शुरू इनके कबाइल हमेशा आज़ाद रहे। इनके अरबों के कबाइल हमेशा आज़ाद थे, दौर जाहिलियत में आज़ाद थे, हमेशा आज़ाद रहे। और ये क्या है, हमेशा बिकते रहे। कौन? और कभी इनको ठिकाना नहीं मिला, कहीं ठिकाना नहीं मिला। तो ये बात हुई। अच्छा साहब, फिर उसके बाद क्या हुआ? बिक गया। फिर कहाँ गए? वो ठिकाना फराम हो गया ना वहाँ। फिर आजमाइशी दौर देखिए, कितने दिनों तक आजमाइशी दौर? इख्तिसाक से बता रहा हूँ, कितने दिनों तक? 8-9 साल तक। बीजा सिनीन का लग कम से कम जो 7 साल से 9 साल तक होता है। इतने आजमाइशी दौर है। बोलिए, आजमाइशी दौर है। फिर उसके बाद निकलते हैं एकदम कुंदन बनकर। अरे भाई, वहाँ भी कल अभी हमने मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी थी कि अगर वहाँ रह गए होते, फ़िरौन की वो जो है उसमें महल में या उसकी ज़ेर सरपरस्ती उनकी तरबियत होती तो फिर किसी लायक रहते। यहाँ भी अज़ीज़ मिस्र के घर अगर ये परमान चढ़ के जवान हो गए, अगर वहीं रहते, अब फॉर्म बना दिया गया होता मिस्र का, तो कामयाब होते नहीं हो सकते थे। इस वजह से क्या इनकी भी थोड़ी आजमाइश होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए। जेल में रखा गया और 7 साल तक, बाद 8 साल तक, 9 साल तक, ज़्यादा 9 साल तक रहेंगे जेल में। और फिर ये क्या बन गए? कुंदन बन गए ना। फिर क्या हुआ देख रहे हैं आप, ख्वाब देखा गया। ख्वाब में क्या हुआ? उधर पे ख्वाब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल वाले ख्वाब देखा है कि हम जा रहे हैं वहाँ। ख्वाब उन्होंने भी देखा, इन्होंने भी ख्वाब देखा है। और ख्वाब की ताबीर बताई उन्होंने, मालूम है आपको? ख्वाब की ताबीर बताई। अच्छा साहब, फिर कहाँ पहुँच गए? वो पहुँच गए क्या? इक़्तिदार मिल गया। ठीक है, इक़्तिदार जब मिल गया, कहत ज़बरदस्त पड़ा है। और हज़रत यूसुफ ने सबसे पहले पूरे मिस्र का उन्होंने जो क्या किया, सर्वे कराया है। मर्दमशुमारी शायद मैं समझता हूँ सबसे पहले हज़रत यूसुफ ने कराई दुनिया की। और सबसे पहले उन्होंने ज़मीनों की पैमाइश कराई, सबसे पहले। और शायद सबसे पहले राशनिंग कार्ड का उन्होंने बंदोबस्त किया, क्योंकि एक फर्द राशन बनवाया है। क्योंकि जब गए, आपको याद होगा, कितने भाई हो? एक कोटा सबसे पहले उन्होंने कहा। उन्होंने कहा इतने भाई हैं, तो कहा अच्छा हम गिनेंगे इधर से। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हर एक का मुतय्यन था, इतने अफराद हैं, इतना गल्ला मिलेगा, यही ना था? यही था ना? राशन बना हुआ था, कार्ड बना हुआ था। उन्होंने कहा हाँ, कोटा लागू किया था सबसे पहले उन्होंने। जब तक मिस्र का सर्वे न किया, पूरे अफ्रीका का, जहाँ तक जब तक सर्वे न किया होगा कि इतनी पैदाइश होगी ना भाई गल्ले की, 7 साल सूखा, 7 साल वो रहेगा ना, इतना गल्ला पैदा होगा। इतने गल्ले को हम ऐसे तकसीम करेंगे, पूरा निज़ाम बनाया ना। जब तक हिसाब नहीं होगा तो कैसे वो तकसीम कर सकते थे और साल वो काबू पाते? नहीं हो सकता था ना। बर्क है मुख्तसर ये। फिर क्या हुआ? हो गया। और आगे इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आखिर में फिर क्या हुआ? बोलिए। ये भाई भी चला गया वहाँ, आखिर में फिर उनको रोक लिया जी। फिर जो है क्या हुआ है, फिर गए, भेजा के जाओ,
फिर गल्ला लाओ बिन्यामीन को रोकने के बाद। बिन्यामीन को रोकने के बाद जब हुआ है, अब इनके पास पैसे नहीं हैं, यही ना, जितना राशन गल्ला जो बन रहा था, कितने भाई थे? 11 थे, हज़रत यूसुफ को लेकर ना, नहीं छोड़कर उनको छोड़कर, तो 11 अफराद थे ना, 11 के नाम पर जो गल्ला बन रहा था, पैसे नहीं हो रहे थे उनके। तो क्या कहा उन्होंने जाकर, हम आए हैं क्या बेमुज़्जात, कुछ थोड़ा सा, अब ये पूरा नहीं हो पा रहा है, बेमुज़्जात, हम आए हैं आपके पास बेमुज़्जात लेकर। तब फतसद्दक़ अलैना, अब ये सुनना था, अब चूँकि ये औलाद थी याकूब की, और भाई थे, अब ये जो फितरत थे इंसानी, ख़ुद ये नबी जो होता है वो रहमतुल लिल आलमीन होता है हर नबी, अब वो अब बर्दाश्त नहीं कर, अब तक छुपाए थे ना, अब बर्दाश्त नहीं कर सके। कहा कि हलल्तुम मा फ़अल्तुम बि यूसुफ, तुम्हें मालूम है तो यूसुफ के साथ क्या सलूक किया। बार बार आते आते जाते रहे, लेकिन कभी पहचाना का नहीं। लेकिन हल अलिमतुम मा फ़अल्तुम बि यूसुफ, अरे तू ही यूसुफ, अंत यूसुफ, कहाँ मैं यूसुफ हूँ, वहादा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, हम पर अल्लाह ने एहसान किया है। और फिर इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, जो लोग तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार कर और सब्र करते, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के को कभी ज़ाया नहीं करता, कभी ज़ाया नहीं करता। फिर पूछा बाप का हाल क्या है, पूछा बाप का हाल क्या है, क्या बताया, वो तो रोते रोते अंधा हो गया। वो बाप अंधा क्यों हुआ, गम में। वो ले गए थे, क्या कमीज तो ले गए थे ना, क्या कहा था, भेड़िया खा गया। देखिए बेदमीन करीब झूठा जी। अब जब वो काफिला, अच्छा ऐसा है, ले जाओ कमीज डालो, वही कमीज जो बीनाई ले गई थी, अब देखिए वही कमीज भेज रहे हैं। और जब वो चला है वलम्मा फ़ज़अ, तो फ़ौरन कहते हैं इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ, मैं यूसुफ खुशबू पा रहा हूँ। अल्लाह ताला देखिए, उसकी मर्ज़ी देखिए, वो वक्त पे खोलता है सब। कमीज़ भी यूसुफ का मौजूद है, वहाँ यूसुफ मौजूद है, लेकिन कभी खुशबू नहीं पाई उन्होंने, कि पाई, रोते रहे और बल्कि हर मरतबा ताने भी देते रहे, रोते रहे, यूसुफ का नाम लेते थे, हर मरतबा ताना देते रहे। आपको मालूम होगा फिर उनकी बीनाई आ गई और पूरा काफिला वहाँ गया। काफिला जब गया तो क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ, हाँ सबको। और उस वक्त कहा था बताओ तुम्हारे पास क्या सुलूक हो, तो उन्होंने यही कहा था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ला तसरीब अलैकुम, कुरान मजीद ने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम। अब आप देखिए, इधर मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। अब आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं कहाँ से, मक्का से, कहाँ जाते हैं ना, सबसे पहले कहाँ जाते हैं भाई, गारे सौर में जाते हैं, छुपते गारे सौर में। फिर यहाँ से निकलते हैं, बोले गारे सौर में, बिल्कुल वो मतलब वो है ना, फिर वो पूरी सूरह है, लेकिन दो चाक नहीं, वो अक्ल को कहता गौर करो। ये सब चीज़ें, एक तो ये है ना, देखो जैसे गाय, तो ये नहीं कर, जैसे नहीं बोलता वो किससे बयान करता है और छोड़ देता है, लिक़ौमी याक़िलून है ना, इन कुंतुम मिन क़ब्लि लमिनल गाफ़िलीन। फिर ना वो क्या था, लअल्लकुम, तुम अक्ल करो, अक्ल से काम लो, अक्ल को उभारो, अक्ल के ज़रिए नतीजे तक पहुँचे तो उसमें लज्जत मिलेगी, इस्तेहकाम में पैदा होगा, मजबूती भी आएगी, क्योंकि तुम खुद से सोच कर जा रहे हो, समझ कर जा रहे हो ना। अब देखिए निकलते हैं गारे सौर से, फिर कहाँ गए, छुपते छुपा गए ना, देखिए है ना। फिर जहाँ से निकले थे, कितने दिन हज़रत यूसुफ जेल में थे, कितने दिनों तक, वहाँ से निकलने के बाद जेल गए बेचारे, कितने दिनों तक, 7-8 साल। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल तक थे, 10 साल तक ना। ठीक है भाई, कब फतेह मक्का हो ये बताइए, 8 साल तक। यूसुफ जेल में रहते हैं 7-8 साल, आकर तख्त पर बैठते हैं,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला था इन्होंने, समझा कि अब वो कांटा निकल गया, यही समझा कांटा निकल गया, जिस तरह यूसुफ भाइयों ने समझा था कांटा निकल गया, अब हम चैन से रहेंगे। और फिर यह 8 ही साल के बाद फातिहा दाखिल होते हैं और सारे जवाबिर कुरैश सहने काबा में जमा होते हैं। आखिर मालूम है आपको जमा होते हैं ना। थोड़ा सा वाक़या सुन लीजिए। जब निकले हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवा दिखाते हैं, जिस तरह वो कहा था ना हज़रत याकूब ने अपने बेटे, एक ही दरवाजे से ना दाखिल होना, बोलिए है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपने सहाबा को क्या किया, मुख्तलिफ इलाकों बांटा है, बांटा तक नहीं, एक ग्रुप इसका ये सरबराह रहेगा, इसका ये सरबराह रहेगा, इसका ये सरबराह, जी है ना, मुख्तलिफ। हज़रत साद इब्न उबादा भी थे, एक गिरोह के सरबराह थे ना। और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को रखा था कहाँ मालूम है, कहाँ रखा था, एक अरिश जबल काबा, गालिबन जबल काबा पे एक अरिश छप्पर डाला था, वहीं बैठे हुए थे और वहीं उसको बैठाया था। जब इधर से काफिला गया है तो किस साद इब्न उबादा की नज़र पड़ गई किस पर, अबू सुफियान पर। बस देख कर कहा था अल यौम यौमुल मलहमा, मतलब क्या हुआ, आज तो खून की नदियाँ बहाएंगे। अबू सुफियान ने कहा अल्लाह के रसूल सुना आपने, साद इब्न उबादा जो रईस थे, किसके रईस थे, रईस अंसार थे, अंसार के रईस थे वो। साद इब्न उबादा ने क्या कहा, अल यौम यौमुल मलहमा, का नहीं, गलत कहा साद ने, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन क्या हो गया, यौमुल मरहमत। मरहमत माने गमखारी का दिन होगा, मरहमत मुआसात का दिन है, रहमत का दिन है, हमार सन्ना किल्ला रहमतुल लिल आलमीन, मरहमत का दिन है, मलहमा का दिन नहीं है। फिर क्या क्या अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन कहा बुलाओ साद इब्न उबादा, फ़ौरन से लिया, हज़रत साद इब्न उबादा से लिया उनको और फिर उनके लड़के को दे दिया, क्या तुम इस लायक नहीं हो, फ़ौरन झंडा ले लिया, आलम ले लिया उनके हाथ से, उनके लड़के को दिया कि तुम लो, तुम इस लायक नहीं हो, देखा आपने फ़ौरन। और फिर एक तारीख़ी एतबार से सीरत के उसमें है, अबू सुफियान को अल्लाह के रसूल ने क्यों वहाँ वो मकाम दिया था, कुछ मालूम है आपको, है क्या मकाम, खुसर को रिश्तेदारी, बस ये खुसर थे इस बुनियाद पर, सरदारी, बोलिए ये बुनियाद थी सिर्फ नहीं, वो जो शेब इब्न अबी तालिब थी ना, ये मदद करता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप समझ लीजिए अबू सुफियान मदद, हाँ अबू सुफियान ने मदद की थी। अबू सुफियान ईमान बहुत बाद में लाए, फ़तेह मक्का के बाद लाए हैं, लेकिन ये जो है दुश्मनी में अबू जहल अबू लहब की तरफ नहीं थी, ये समझ गया आप ना, वो उनकी चारागिरी करते थे अल्लाह के रसूल की, उनकी देख रेख जो करते थे उस ज़माने में, इस वजह से अल्लाह के रसूल ने उनको वहाँ बैठाया था बरकैफ। और वो फिर बाद में शादी तो हो ही गई थी, वो तो मालूम है आपको। हाँ, अब जब वहाँ गए फ़तेह मक्का हो गई, समझिए आप जी, मामले से झड़प हुई है। जब फ़तेह मक्का होगी तो सारे सरदारान आ गए, जवाबिर आ गए, तो फिर क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था वही कि वो बोलो आज तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, क्या समझते हो तुम, तो क्या कहा था उन्होंने, क्या कहा था, क्या कहा था, कहा अंता अखुन करीमुन व इब्नु अखिन करीम, तो बेहतरीन भाई है और बेहतरीन भाई का लड़का है, बोलिए बिल्कुल वही कहा था, क्योंकि मालूम है सूरह यूसुफ कि नहीं, उनको वो जितना समझते थे हम लोग नहीं समझ पाते, बोलिए आपकी, वो बहुत होशियार थे, अरब के लोग नहायत चालाक, कुरैश के लोग नहायत दूरंदेश थे, ज़ुबान शनास थे और नहायत अक्लमंद लोग थे। फ़ौरन कहा अखुन करीम व इब्नु अखिन करीम, तो बेहतरीन भाई हमारा है और बेहतरीन भाई का लड़का है। तो वही जवाब उन्होंने भी दिया कि जाओ फज़हबू ला तसरीब अलैकुमुल यौम फज़हबू व अंतुम तुलक़ा, जाओ। ये सब आयतें या सूरतें, ये सब सूरह यूसुफ आयतें पढ़ने के बाद क़ुरान मजीद आखिर में रखता है इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रा, इस किस्से का इबरत है, इबरत है, इबरत हुदन, हिदायत, रहमतन, किसके लिए हिदायत रहमत है, लिल मोमिनीन, लिल मोमिनीन। ठीक उसी तरह जिस तरह ये सूरह ज़ुहा क्या है, नसीहत है, इबरत है, हिदायत है, रहमत है, किसके लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे नबी, हाँ
صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اصحاب نبی کے لیے بھی ہے اسوا، نمونہ، تجھے چھوڑے گا نہیں اللہ. ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. مستقبل جو ہے کیا ہے؟ روشن ہے، حال سے تمہارا مستقبل روشن ہے.